بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصان ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ہو سکے تو دل سے ایک لائک کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، بنا کسی دیری کے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آج بہت سے لوگوں کی یہ شکایتیں رہتی ہے کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کی رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ان کے گھر پر کسی نے جادو ٹونا کرا دیا ہے۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا علاج یا سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور جلتا ہے، جس گھر میں اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ ایسے گھر میں پھر کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آتی ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بستر پر بیٹھ کر یا میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سے پریشانیاں آتی ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق میں برکت ختم ہوتی ہے، بلکہ اس طرح سے کھانا کھانے سے انسانی جسم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ دوستو، آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل پر یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح سے کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی، اور یہ صحت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ نقصان دایک ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر زمین پر دسترخوان بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اسی جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے رزق سے برکت ختم ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر اور تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے، اس سے صحت کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر اور ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر اپنا موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے کھانے کا نہ تو ٹھیک سے سواد کا کچھ پتہ چل پاتا ہے، اور نہ ہی ایسے میں کھانا ٹھیک سے چبا کر کھایا جاتا ہے۔ اس لیے پھر اس طریقے سے کھایا گیا کھانا انسانی جسم کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جب بھی کھانا کھاتے تھے تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو اپنے سب گھر والوں کے ساتھ میں بیٹھ کر ہی کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، میری روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا ہے اور آپ کے سب گھر والے الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ صحابی عرض کرنے لگے، ہاں یا رسول اللہ، یہ صحیح ہے، میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں خیر و برکت ہو تو تم سب گھر والے زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ دوستو، اب ہم آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں آج سائنس ہمیں کیا کہتا ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصان ہوتے ہیں۔
याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसान होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर बिस्तर रुई की बनी हुई होती है और आपको मालूम है कि रुई ऊर्जा के प्रभाव को रोकती है, यानी कि ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से लीवर की ऊर्जा को बाहर निकालने नहीं देता है, जिसकी वजह से इंसान का पाचन तंत्र खराब होने लगता है, जिससे फिर अपच, गैस और पेट दर्द जैसी शिकायतें रहने लग जाती है। आप कोशिश करें कि खाना हमेशा आप ज़मीन पर ही बैठकर खाएं और दस्तरखान बिछाकर ही खाएं। इसके अलावा दोस्तों, आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं, लेकिन याद रखें, खड़े खड़े होकर भी इंसान को कभी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान का पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता है, जिससे फिर इंसान को कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखें, खाना हमेशा खामोशी के साथ में बैठकर और धीरे धीरे और अच्छी तरह से चिबाकर ही खाया जाए। इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, याद रखें कि बिना वजह के और बिना ज़रूरत के कभी भी आप बिस्तर पर बैठकर या फिर मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतर तरीक़ा बताया है, इसलिए हम सबके लिए बेहतर यही है कि जैसा खाना खाने का तरीका हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया है, उसी तरीके से हम सबको खाना खाना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी खाना किस तरह से खाते थे, खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले आप दोनों हाथों को गट्टों तक ज़रूर धो लें। सिर्फ एक ही हाथ की उंगलियां ना धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से गट्टों तक धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते थे तो पहले आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से गट्टों तक धोते थे। उसके बाद आप अपने हाथों को किसी तौलिए से या फिर रुमाल से नहीं पोंछते थे, लेकिन जब आप खाना खा लेते थे और उसके बाद में जब आप अपने हाथों को धोते थे तो उस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिए से या रुमाल से अच्छी तरह से पोंछ लेते थे। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने का असर बाकी ना रहे। इसलिए खाना खाते वक्त आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने दोनों हाथों को ज़रूर धो लें, मगर उस वक्त आप अपने हाथ किसी तौलिए से या रुमाल से ना पोंछें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धोएं तो उस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें, ताकि खाने का असर आपके हाथों में बाकी ना रहे। इसके अलावा दोस्तों, आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ लें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर ही खाना खाना शुरू करें और बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज़ से पढ़ें, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब लोग भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और अगर आप खाना खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो फिर आपको जब याद आए तो उस वक्त आप ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। इसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह, मैंने खाना खाने के शुरू में और आखिर में तेरा नाम लिया। इसके अलावा आप खाना खाते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप हमेशा खाना दाएं हाथ से यानी कि सीधे हाथ से ही खाएं। बाएं यानी कि उल्टे हाथ से कभी भी आप खाना ना खाएं, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना खाना शैतान का काम है। इसलिए इसे अल्लाह के प्यारे नबी ने मना फरमाया है। और इसके अलावा आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो उस वक्त आप अपना बायां पाँव बिछा दें और दाहिना पाँव खड़ा कर दें। अगर कोई भारी भरकम बदन या किसी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और वो इस तरह से नहीं बैठ सकता है तो फिर उल्टी पलटी मारकर बैठने में भी कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें, आप जब भी खाना खा लें तो उसके बाद आप अपनी उंगलियों को अच्छी तरह से चाट लें और बर्तन को भी आप अपनी उंगलियों से अच्छी तरह से पोंछकर चाट लें। इसके अलावा अगर कभी खाना खाते वक्त कोई लुकमा छूटकर दस्तरखान पर गिर जाए तो आप उसे भी उठाकर फ़ौरन ही खा लें, क्योंकि याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप उस लुकमे को उठाकर फेंक देंगे तो ये खाने की बेअदबी होगी और आपके घर में बरकत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप ये गलती भी कभी ना करें। इसके अलावा आप ये भी ज़रूर याद रखें, आप जब भी खाना खाएं तो बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी ना खाएं और ना ही कभी खाने को सूंघें और ना ही कभी खाने पर फूंक मार मार कर उसको कभी ठंडा करें, क्योंकि ये सब काम भी खिलाफ़े अदब है और इससे भी घर में बरकत ख़त्म होती है। अगर हो सके तो आप खाने की शुरुआत भी नमक के साथ में करें और खाने को ख़त्म भी नमक के साथ ही करें, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने नमक में बहुत ज़्यादा शिफा रखी।
खाना खाने के बाद साबुन लगाकर अपने हाथों को धोने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा खाना खाने के बाद हाज़रीन के लिए खैर बरकत के लिए दुआ भी ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी याद रखें कि आप कभी भी सोने और चांदी के बर्तन में खाना ना खाएं, क्योंकि सोना और चांदी के बर्तन में खाना खाना जायज़ नहीं है, बल्कि इन चीज़ों का किसी भी तरह से इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं है। जैसे कि अगर कोई सोने चांदी का चम्मच इस्तेमाल करता है या फिर कोई सोने चांदी की थाली को इस्तेमाल करता है तो याद रखें ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। इससे हमारे प्यारे नबी ने हमें मना फरमाया है। दोस्तों खाना खाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें, खाना आप हमेशा बैठकर ही खाएं, क्योंकि ये भी हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है और सेहत के लिहाज से भी ये करना बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि बैठकर खाना खाना हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और खाना खाते वक्त खाना उतना ही ले जितना आप खा सकते हैं। ज़्यादा खाना लेकर आप खाने को बेकार या बर्बाद ना करें, ऐसा करने से भी हमारे प्यारे नबी ने हमें मना फरमाया है। अगर आप ज़्यादा खाना लेकर खाने को बर्बाद करते हो तो ये भी रिज़्क की बेअदबी होगी, इससे भी आपके रिज़्क से बरकत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप खाना खाते ये गलती कभी ना करें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि आप जब भी खाना खाने बैठें तो पहले आप थोड़ा पानी ज़रूर पी लें और खाने के बीच में भी थोड़ा पानी पी लें। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन आप खाना खाने के आखिर में कभी भी भूलकर भी पानी ना पिएं। उसके बाद आप खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद ही पानी पिएं। याद रखें जिन लोगों को खाना खाने के फ़ौरन बाद में पानी पीने की आदत है उनको ऐसा करने में थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों की भी इसकी आदत हो जाएगी और फिर उनको ऐसा करने का बहुत सारे फ़ायदे भी हासिल होंगे। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि अगर आप किसी और के साथ में खाना खा रहे हैं तो आप उसको अकेला छोड़कर कभी भी पहले ना उठें, बल्कि जब तक आपके साथ वाला खाना ना खा ले तब तक आप वहाँ से ना उठें। यानी कि आप उसको अकेला खाने पर छोड़कर पहले ना उठें। और आप जब भी खाना खाएं तो आप खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से फिर आपका खाना हजम होने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। और इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं तो अपनी भूख से थोड़ी कम ही खाना खाएं, यानी कि भूखे पेट भरकर खाना ना खाएं। ये भी आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।